I am Anu Kumari. I am an IAS officer of batch 2018. I am basically from Haryana, Sonipat district, and I am at present posted in Kannur district of Kerala Kadar. So that is a brief description about me. Now I will straight away start with the FAQs. So even before going to how to start preparation, first I would want to talk about. I get a lot of questions. बहुत लोग पूछते हैं जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, 12th में हैं, या मे बी फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में हैं. दे कीप ऑन आस्किंग कि what should we do at this stage for our UPSC preparation. So first of all, to these children, I want to tell, life is much more than just UPSC. So at these stages of your life, when you are pursuing your 10th standard, 12th standard, or just the initial years of college, you should, instead of right away going into the rigor of UPSC preparation and starting reading those books which are relevant for UPSC, but please focus on developing a wholesome personality that is going to help you more to crack UPSC when the time comes, rather than immersing yourself in UPSC oriented books at this stage. What do I mean by a wholesome personality? So, what I would want to say is, at this stage, you should focus on um, owning your skills, owning your hobbies, developing a genuine interest in anything. It can be cricket, music, dancing, painting, some game, some sport, watching movies, or anything that you genuinely like. Develop a passion for that and study that thoroughly. Okay, try to gain genuine knowledge about that. Be alert about what is happening in that particular field around you. When it comes to academics, instead of reading or studying maybe UPSC oriented books, focus on what is your curriculum. Because what happens is, when you will actually prepare for UPSC and you will sit for the personality test or the so called interview, then you, most probably being a fresher, most of the questions could be emerging from your academic background. So at that point of time, if you have a thorough and genuine knowledge, your fundamentals are clear, that is going to aid you more as compared to you immersing yourself in UPSC oriented books at this young age. Okay, moving forward, the second question which I get often is how to start preparation. Okay, how to start preparation from zero. सो बच्चे उसके लिए आसान सी चीज़ है. सबसे पहले आप अपनी बुक लिस्ट कंपाइल करिए. और बुक लिस्ट कंपाइल करने का क्या तरीका है? यू कैन गो एंड सर्फ थ्रू द बुक लिस्ट ऑफ previous toppers, whoever you like, or the latest toppers, whatever you feel like. Do a research on that. Then you compile a book list, going by your research on the book list of multiple toppers. इसमें मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूँगी. ट्राई टू कीप योर सोर्सेज़ लिस्ट शॉर्ट. अगर आप इसे ज़्यादा लंबा करते जाते हैं ना, क्वाइट ऑफ़न इन मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, वो लोग हर एक नए टॉपिक के लिए एक नई किताब बता देते हैं. बट ट्रस्ट मी, वी all study, when we study for UPSC, we study in a time bound manner. We really have shortage of time. हर एक नए टॉपिक के लिए एक नई बुक कवर करना is next to impossible. So be practical, keep your book list short, and try to take multiple revisions of that instead of going for a large number of books to begin with. तो सबसे पहले आप अपनी एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है? टू बिगिन विद यू कैन स्टार्ट विद एनसीईआरटी बुक्स. अब एनसीईआरटी बुक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, नई वाली पढ़े या पुरानी वाली, वेदर टू स्टडी द ओल्ड वन और द न्यू वन. तो मैंने ओल्ड वाली पर्टिकुलरली नहीं ली थी. आई हैड जस्ट गॉन टू अ बुक शॉप और जो मुझे मिली मैं लेके आ गई थी. टर्न्स आउट दैट दे वर द न्यू एनसीईआरटी. तो वो करके मैंने किया था एंड इट टर्न्ड आउट वेल. उसमें भी यू हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड एवरीथिंग. सो बुक लिस्ट बनाइए, start preparing, preferably starting with NCERTs. Again, 6 to 12 सारी NCERTs नहीं करनी है. You're not supposed to go through each and every NCERT. The
पैटर्न ऑफ द पेपर इज़ चेंजिंग। बहुत पुराने टाइम में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आते थे जिन्हें हम जनरली ये बोलते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन-सी बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से, मेबी बहुत टाइम पहले। Nowadays, the questions are not, too much FAQ oriented, that too related to NCERT books. So, flip through the NCERT books. You can cover only the relevant ones. For that, you can refer my book list or the book list of any other topper. But 6 to 12 सारी NCERTs करने की ज़रूरत नहीं है। Once you start, NCERT बुक आपने कवर की। अगेन, वन क्वेश्चन दैट इज ऑफन आस्क्ड इज, एक बुक को पहले एक बार खत्म करके देन टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक, या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बुक्स यू कैन कवर पैरेलली और साइमल्टेनियसली। सो अगेन, कंप्लीटली योर चॉइस, व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू, आपको क्या ठीक लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो फॉर मी इट वाज दैट आई वुड टेक अप वन बुक, उसको खत्म करके ओनली आफ्टर दैट आई वुड मूव ऑन टू द न्यू बुक। ऐसा करने से मुझे जो फ़ायदा होता था वो ये था कि आई वुड बी हैविंग अ बेटर आइडिया कि मैं एक बुक की एक रीडिंग या एक प्रॉपर वाली लर्निंग कितने टाइम में कर पा रही हूँ। सो सूट योरसेल्फ, जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप वो अपनाइए। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, बी इट प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस और द पर्सनैलिटी टेस्ट, डू कीप इट इन योर माइंड कि सारे कंटेंट को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तभी जाके हमारी रिटेंशन अच्छी होती है, तभी जाके वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इन दी एक्चुअल सेटिंग्स। मेंस एग्जाम में, प्री एग्जाम में या पर्सनैलिटी टेस्ट में हम उसे बता तभी पाते हैं। तो क्वाइट ऑफन स्टूडेंट्स आस्क, मुझे याद नहीं रहता है। So trust me बच्चे, it is very natural, it is a normal thing, happens to everybody. मैं अगर अपना आज की if I tell you about myself today, लक्ष्मीकांत मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, लगभग 4 साल पहले। So अगर आज कोई मुझसे आके somebody ask me about the articles etc of लक्ष्मीकांत या पॉलिटी, तो मुझे बहुत कम याद होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने ऑब्वियसली उस बुक को रिवाइज़ नहीं किया है। सो रिविज़न इज़ व्हाट मैटर्स। कोई भी आइंस्टाइन पैदा नहीं होता है माँ के पेट से कि एक बार पढ़ दिया सारा याद हो जाएगा। यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग, एंड व्हेन वी से दैट यू रीड अ बुक, सो इट्स नॉट जस्ट mere रीडिंग। इफ यू जस्ट रीड इट, ट्रस्ट मी, रिटेंशन नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट। तो आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको उसे लर्न करना है, मेमोराइज करना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली समझना है। अगर हम मगिंग या क्रैमिंग करते हैं ना, तो द टेंडेंसी टू फॉरगेट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर। तो you have to focus on memorizing the things. Then हर एक स्टेज से पहले, जैसा मैं बोल रही थी, प्री हो, मेंस हो या इवन पर्सनैलिटी टेस्ट, आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को कई-कई बार रिवाइज़ करना है। फॉर मी दैट फिगर वाज़ समवेयर अराउंड 5-6 टाइम्स, एंड व्हेन आई से 5-6 टाइम्स यू हैव टू स्टडी अ बुक, दैट मीन्स सबसे पहले आपकी जो रीडिंग होगी, दैट कैन बी अ कर्सरी रीडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ द बुक। आपको समझ आ रहा है या नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट। व्हेन यू टेक द सेकंड रीडिंग, that has to be actual memorization and actual learning. When you take the third reading, then try to see कि how much of it you are able to retain और कितना आप भूल गए हैं, and then again memorize and learn those things which you are forgetting. ऐसा ही करके आपको अपनी चौथी रीडिंग लेनी है, पांचवी लेनी है। What begins to happen is when you reach maybe a fourth या fifth reading of that book, तो आपका रिटेंशन पार्ट इंक्रीज होता चला जाता है। एंड व्हाट आई फाउंड वाज कि व्हेन द एग्जाम वाज अप्रोचिंग, फॉर एग्जांपल अगर प्री हमारा 1 हफ्ता दूर है और मुझे अपनी स्टैंडर्ड बुक्स की रिविजन करनी थी, तो आई वुड फ्लिप थ्रू दोज़ बुक्स। उस टाइम मैं एक-एक वर्ड पढ़ के उस पूरी बुक की रिविजन नहीं लूँगी, रादर मैंने उसमें अपने सेक्शंस हाइलाइट कर रखे थे, पॉइंट्स हाइलाइट कर रखे थे, व्हिच आई यूज्ड टू फाइंड डिफिकल्ट टू मेमोराइज़ एंड व्हिच आई हैड अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। तो मेबी मेरी जो लास्ट रीडिंग थी, दैट वाज़ मोर फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स रिवाइजिंग दोज़ पॉइंट्स व्हिच आई फाउंड डिफिकल्ट। सो व्हेन आई से मल्टीपल रिविजन्स, दैट यू हैव टू अट्यून टू योरसेल्फ कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हर एक रीडिंग में रिवाइज करना है, या फिर व्हेन यू रीच द एग्जाम, तो आप सिर्फ उन पार्ट्स पर फोकस कर सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और बाकी पार्ट्स यू आर श्योर, यू हैव टू एंश्योर कि वो ऑलरेडी मेमोराइज हो चुके हैं, यू डोंट हैव अ डिफिकल्टी इन रिटेनिंग दैट। तो बच्चे, प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करनी है। जस्ट टू समराइज अगेन, बुक लिस्ट बनाइए, बुक्स रीड करना शुरू कर दीजिए, प्रेफरेबली एनसीईआरटीज़ बिकॉज़ दे आर रिलेटिवली ईज़ियर, देन मूव ऑन टू अदर स्टैंडर्ड बुक्स। अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। एक मोटी-मोटी अगर मैं टाइमलाइन बताऊँ जो मैंने अपनाई थी, व्हिच आई फॉलोड,
मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए लगभग 4 महीने रख लो कि 4 महीने में अपना जनरल स्टडीज़ का सारा कोर्स हमें कंप्लीट करना है। Once you have finished your general studies, after that you can kind of devote around 4 months to your optional. Okay, and after that, if we say, and this I am telling you this broad timeline, keeping in mind that you are starting your preparation at least 1 year in advance to the preliminary exam that you are targeting. शुरुआत के 4 महीने आप जनरल स्टडीज़ कंप्लीट करने में लगा सकते हैं, एंड व्हेन आई से कंप्लीट, दैट मीन्स कि मल्टीपल रिविजन्स, ओके, एंड रिटेंशन शुड स्टार्ट हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगले 4 महीने यू कैन डेडिकेट, नेक्स्ट 4 मंथ्स यू कैन डेडिकेट टू योर ऑप्शनल। अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, एंड in these months I'm not talking about answer writing practice, I'm coming to that next. So once in the initial 4 months when you have done your GS, then in the next 4 months when you are not going to touch your standard GS wala books again, rather you are going to focus only on your optional, that is a good time to start answer writing practice for the mains. Okay, because आपने सारा GS का स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स यू वुड हैव बीन डूइंग राइट फ्रॉम डे 1, तो आपका एक बेस बन चुका है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें? यू नो, be ready and be prepared. The very first answer that you are going to write, that is not going to be of good quality or of the standard that is required for UPSC. When I wrote my first answer, so trust me, I had gone on and on blabbering for like 2.5 pages of a big register, और समझ नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें। जो बिगिनिंग होती है उसमें मैंने लगभग 2 पैराग्राफ्स तो बिगिनिंग में ही लिखे थे, इवन बिफोर मूविंग ऑन टू द एनालिसिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। So this happens when we write our first answer, that is not going to be of optimal quality, but with practice everything comes. Around 1.5-2 महीने में I was kind of confident कि yeah, I can write a decent answer today, and this was like 1.5 or 2 months of dedicated daily answer writing practice. To begin with, you can start with maybe writing 1 or 2 answers daily, then in a week or two you can graduate to writing maybe 4 answers, and just writing the answer is not important. What is important is you compare that answer with the answers of the fellow aspirants or with the model answer given by some particular institute जिसके भी questions आप solve कर रहे हैं, and then analyzing where you are faltering. आपका flaw कहाँ lie कर रहा है? Is it the speed? Is it the content? Whatever it is, analyze करो और उस पे work करो, and with time only things fall in place. शुरुआत में आप अपनी स्पीड को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मे बी इन 8 or 9 minutes you won't be able to write a decent answer, but trust me, have patience, keep on practicing, and with time things will fall in place. तो जो ये 4 महीने मैंने बताया जिस समय आप अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ के साथ आपकी जीएस की मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जीएस कंटेंट के लिए पक्का अच्छे से हो जाएगी इफ यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। देन मूविंग ऑन, 4+4 लगभग 8 महीने हो गए हैं, आर जीएस इज कवर्ड, आर ऑप्शनल इज कवर्ड, देन वी आर मूविंग क्लोज टू प्रिलिमिनरी नाउ। सो अभी लगभग 4 महीने बचे हैं, तो इनिशियल 2 मंथ्स में क्या करना है, you have to again start revising all those GS books which you had done in the initial 4 months. जितनी रिविजन ले सको आप उसकी ले लो। लास्ट के जब 2 महीने की बात आती है, this is the time when you have to just lose touch with your optional, and you have to completely focus on your pre-exam and on the GS part. तो इस दौरान आपको इसकी जो अपने MCQs होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट कोई भी एक इंस्टीट्यूट की तो टेस्ट सीरीज फुल्ली कर लीजिए। वो तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, करनी ही करनी है। एटलीस्ट 1 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। इसके साथ ही अगर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो दैट विल बी बेटर। मैंने क्या किया था, मैंने टेस्ट सीरीज़ की थी इनसाइट्स ऑन इंडिया की, और साथ के साथ सिविल्स डेली या सिविल्स 360 इनमें से कोई वेबसाइट थी जो लास्ट 60 डे प्लान करके कुछ लेके आई थी, एंड दे यूज्ड टू पुट सम 25-30 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। तो मैंने उस वेबसाइट पे भी सॉल्व करना शुरू कर दिया था। सो आई फाउंड कि थोड़ा-सा वैरायटी क्वेश्चंस की चेंज हो गई थी, एंड मन में फिर ये सैटिस्फैक्शन आ गया था कि ओके, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल टेस्ट सीरीज, और मैंने कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट का भी किया है। Like that, then as pre is approaching, focus more and more on revision of all those tests also that you have done. काफ़ी बार ये गलती हम कर देते हैं, we will say कि हमने ना कोई एक particular test series अच्छे से कर ली है, but
जब तक आपने उसे रिवाइज़ नहीं किया है तब तक इट डज़न्ट मैटर। और रिवाइज़ सिर्फ़ रॉन्ग क्वेश्चन्स को नहीं करना है, रॉन्ग क्वेश्चन्स को तो करना ही करना है मल्टीपल टाइम्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली कि व्हाट वेंट रॉन्ग। जो क्वेश्चन्स आपके सही हुए हैं ना, उनको भी पक्का रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारा क्वेश्चन ना तुक्के से ठीक हो गया हो, या एट द लास्ट मोमेंट वी वुड हैव बीन कन्फ्यूज़्ड बिटवीन 2 ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस में से हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट कुड हैव बीन अ मैटर ऑफ चांस। तो प्रॉपरली क्या आंसर है, वो आपको अच्छे से करने के लिए यू हैव टू रिवाइज़ द होल टेस्ट सीरीज़ एंड नॉट जस्ट द रॉन्ग आंसर्स। ओके, सो दैट इज़ अबाउट प्री की स्टेज तक पहुँच गए। जैसे ही प्री खत्म होता है, यू कैन टेक 2 डेज़ का, 3 डेज़ का ब्रेक, रेजुविनेट योरसेल्फ, और उसके बाद ना मल्टीपल टाइम्स आप वो कैलकुलेशन तो करते रहोगे, मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं प्री में, फलानी की के हिसाब से कितने मार्क्स आ रहे हैं, विल आई बी एबल टू मेक टू इट और नॉट एबल टू मेक टू इट। वो कैलकुलेशन आपको करनी है, करते रहिए। वेरी लॉजिकल, करना भी चाहिए। But at the same time, don't waste your precious time in just brooding कि you'll be able to make it or not. Please start, with full dedication for mains preparation. God forbid अगर उस particular attempt में नहीं हुआ तो next year definitely काम आने वाला है. So you don't have to waste time. Start with your mains preparation. GS की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी कर ली थी. If you are quite lucky and dedicated, तो मे बी आपने अपने ऑप्शनल की भी कर ली होगी कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर नहीं की है, आई बिलॉन्ग टू दैट कैटेगरी। मैंने अपने ऑप्शनल को आई वुड से बहुत डेडिकेशन से पढ़ा था, पर आई वाज़ इन नो स्टेज कि आई कुड से दैट आई वुड राइट अ डिसेंट आंसर। कंटेंट बहुत हो गया था दिमाग में, बट आई हैड नॉट रिटन इवन अ सिंगल आंसर टिल दैट डेट। तो अब आप अपने ऑप्शनल की भी अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में जो आपने मैं बता रही थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करते टाइम 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जिनकी डेली प्रैक्टिस की है, दैट इज़ वन मेथड। व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ फुल लेंथ टेस्ट, तो जो टाइमिंग की कैलकुलेशन होती है, दैट गोज़ दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग इंडिविजुअल आंसर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप हर एक क्वेश्चन में आधा-आधा या 1-1 मिनट एक्सीड करते जा रहे हैं टाइम, ठीक है? 8 मिनट की जगह 9 मिनट लगा रहे हैं, 9 मिनट की जगह 10 मिनट लगा रहे हैं, तो ट्रस्ट मी आपके कई क्वेश्चन छूट जाएँगे। यू कैन डू द ब्रॉड मैथ्स कि 20 क्वेश्चन्स, हर एक में 1 मिनट एक्सेस, तो 20 मिनट गए। 20 मिनट गए तो लगभग आपका ढाई क्वेश्चन लिखना रह गया। So in mains, more than improving the quality of each and every answer, more than that, the important thing is finishing the question paper. That is going to fetch you more marks rather than adding quality to maybe a couple of questions. तो आप वो करिए। विद दैट, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, अदरवाइज द सेशन इज़ गोइंग टू बी प्रिटी लॉन्ग, एंड सिंस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड many of these preparation related things in my some other interviews, so probably you can google that if you want to know my strategy. Then I would be coming to couple of other FAQs which I often get. One of the questions is coaching essential? So बच्चे मतलब I'm telling it from the bottom of my heart, and just not my experience but from the experience of many others also, कोचिंग essential नहीं है। बिना कोचिंग के आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोचिंग नहीं, इम्पोर्टेंट है गाइडेंस, ठीक है? एंड व्हाट डू आई मीन बाय गाइडेंस? आप फँसे हुए हैं कहीं पे, आपको समझ नहीं आ रहा, आपका सपोज़ कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, या आपको ये नहीं पता है, यू आर नॉट एबल टू असेस योरसेल्फ कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ऐसी जगह पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट गाइड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीबॉडी, अ फ्रेंड, a fellow aspirant, somebody who has already cracked the exam, if you are in touch with any previous topper, etc. वो चीज़ें important होती हैं, getting your answer assessed by someone good, these things are important. Otherwise देखिए, कोचिंग का सारा कंटेंट एंड जो मटेरियल है वो आजकल वीडियोज़ में अवेलेबल है। आप मार्केट में चले जाते हैं, राजेंद्र मार्केट में एंड एवरीथिंग, तो वहाँ अवेलेबल है सारी किताबें, उनकी क्या कंटेंट रहता है। तो कोचिंग एज़ सच इज़ नॉट दैट नेसेसरी। इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कोई ना कोई गाइडेंस अवेलेबल हो। एंड उसके लिए भी बच्चे मैं ये कहूँगी कि व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग, आई डिड नॉट हैव एनी सच डायरेक्ट गाइडेंस अवेलेबल। मैंने कहीं पे कोचिंग नहीं ली थी, बट थ्रू दीज़ चैनल्स एटसेट्रा ना, इनसाइट्स ऑन इंडिया के थ्रू आई गॉट इन टच विद 2 पर्सन्स। उनके साथ छोटी-छोटी चीज़ें भी डिस्कस हो जाती थी ना, दैट यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट।
So like that it is not difficult. Okay, on multiple preparation channels आपको मिल सकते हैं लोग, और get in touch with like minded people who are dedicated, who are really into preparation. So through them you can clarify your doubts. Next question. People often ask, should you make notes for current affairs and as well as for GS portion, या फिर without notes you can do? It is again, I would say, a completely personal choice कि what kind of individual you are. मैं अगर अपना experience बताऊं तो I am more comfortable in reading from the book or from the direct source. If I want to add any content, तो मैं उस बुक में ही साइड में मार्जिन में या नीचे हाईलाइट करके आई वुड ऐड दैट एक्स्ट्रा कंटेंट। अगर मैंने कहीं करंट अफेयर से पढ़ा या कहीं और से मुझे कुछ अच्छा पॉइंट मिला तो आई वुड ऐड इट देयर एंड देन ऑन द बुक इटसेल्फ। ओके, मैं नोट्स प्रिपरेशन के डायरेक्टली फेवर में क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आई फील कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नोट्स प्रिपरेशन फॉर द करंट अफेयर्स। अब जब प्रोफेशनल लोग अपना टाइम लगा के हमारे लिए बुकलेट्स बना रहे हैं करंट अफेयर्स की, be it Insights on India, be it Vision, or there are many other institutes also. So why to waste your effort in doing this? We are anyway short of time when it comes to UPSC preparation. So let us use our time smartly or more efficiently. This is my take. Baki, it is completely your choice. If you want to make notes for current affairs, go ahead with that. Again, my personal strategy: revise from those books itself. On a daily basis you have been reading the same content, और उसी source का अगर compilation आप revise कर लेते हैं तो बहुत आराम से refresh हो जाता है, and you can add your any additional points on the book itself. बाकी जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, आई फील कि क्वाइट अ बिट ऑफ नोट मेकिंग ऑलरेडी हैपन्स इन दैट. When I used to write my GS answers, so first I have written the answer, then I would compare it to other good answers, और इसमें से कोई भी additional point मेरे पास आता था तो I would add that on my register where I did my answer writing practice. ऐसा करके वो notes ही prepare हो रहे थे, उस तरीके के notes prepare हो गए थे, but डेडिकेटेड ही अलग से मैंने करंट अफेयर्स के या फिर अपने जीएस वगैरह के नोट्स नहीं बनाए थे. सो योर चॉइस. मतलब इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हर जगह ऐसा ही होता है. हजार लोग, हजार टॉपर्स ऐसे होंगे जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे, हजार टॉपर्स ऐसे होंगे जो बिना नोट्स के ही काम करते हैं. सो कम्प्लीटली अप टू यू, सूट योरसेल्फ. टिप्स फॉर आंसर राइटिंग. So answer writing ke related, as I told you that I have already done the videos in quite detail already, but isme short mein I'll just refresh once again. So for a good answer, practice is of utmost importance, because in the real life exam setting, जो आपने याद भी कर रखा होगा, not necessarily that it will come back to you fully. Maybe आप कोई डेट भूल जाएंगे, एक्ट का पूरा नाम याद नहीं होगा, या किसी आर्टिकल का नंबर याद नहीं होगा प्रॉपरली. दीज थिंग्स हैपन. सो बहुत बहुत अच्छे से खूब सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले ही करके रखिए, so that these kind of weaknesses you realize them in time, and then you address them. Next is, in your answer, try to make use of diagrams या flow charts as much as possible, and it is not an easy thing. It comes with a lot of practice. I can tell you कि मैंने बहुत बहुत अच्छे से इनकी आंसर डायग्राम्स की, फ्लो चार्ट्स वगैरह की प्रैक्टिस की थी, लेकिन फिर भी व्हेन रियल एग्जाम केम, तो in very few questions I was able to use that. So you have to practice a lot, तभी जाके ये फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स आप इस्तेमाल कर पाएंगे. Then as everybody says, you must already be aware, give a balanced approach. ठीक है, try to understand the keywords properly when they say कि whether it is explain, enumerate, criticize, etc., etc. So going by those keywords, try to give a balanced answer, and focus on one thing, that you're closing. Okay, the closing remark should be something positive. It should be solution oriented. It should show that you are a positive individual, and problems are there, but the problems can be solved. So these small bits about answer writing, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाने का टाइम नहीं है, so I wouldn't go for that. Next question which I received from multiple comments etc. was Hindi medium students के लिए.
तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्लीटली एग्री कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ नॉट काइंड ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। यहाँ तक कि डिसेंट करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, हिंदी में नहीं मिलते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में नहीं आता है, तो वहीं काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आपकी इंग्लिश ठीक-ठाक है या बिलो एवरेज भी है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, तो आई वुड से कि गो फॉर इंग्लिश मीडियम। क्योंकि हमारे आंसर्स में ना हाई-फाई इंग्लिश और सुपरफ्लुअस इंग्लिश इज़ नॉट व्हाट इज़ नीडेड। बेसिक इंग्लिश, ग्रामर ठीक हो, ऐसी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो अगर हो सकता है तो इंग्लिश मीडियम में ही आप ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो हिंदी मीडियम के प्रॉपर सोर्सेज़ क्या हैं? या फिर आपको न्यूज़ को ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहिए, या फिर डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ के फिर आप एग्ज़ाम टाइम में ट्रांसलेट करेंगे। व्हाट इज़ अ बेटर मेथड? उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पास्ट हिंदी मीडियम के टॉपर्स की वीडियोज़ देख लीजिए। कई सारे लोग हैं हमारे बीच में, तो हू हैव डन रियली वेल यूजिंग हिंदी मीडियम। आप उनकी वीडियोज़ देख के, उनके एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ ऑन करके एंड देन यू प्रोसीड अहेड। एक जो क्वेश्चन आता है वर्किंग पीपल के लिए कि अलोंग विद अ 10 टू 5 जॉब हाउ टू प्रिपेयर, तो आई वुड एडमिट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं अपने आप को एक रेगुलर एस्पिरेंट से जो मे बी सुबह 4 बजे उठ के रात को 10 बजे तक पढ़ रहा है, एज़ कम्पेयर टू दैट आप 10 से 5 तक तो नौकरी ही कर रहे हैं, उसके बाद थक-हार के भी आएँगे। तो विल यू बी एबल टू गिव दैट मच ऑफ टाइम एंड डेडिकेटेड अटेंशन? बहुत मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम देयर आर सक्सेस स्टोरीज़ जिन लोगों ने अपने जॉब के साथ-साथ किया है। तो अब उसके निटी-ग्रिटी पे आते हैं कि व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू इफ यू आर हैविंग अ 10 टू 5 जॉब? आई वुड से कि इफ पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल है कुछ समय की छुट्टी लेके, अगर आप 1 साल निकाल सकते हैं, 1 साल आप अच्छे से डेडिकेटेड तैयारी कर लीजिए एंड देन यू गो बैक टू योर जॉब। अगर उस अटेम्प्ट में नहीं होता है, वो तो रहेगी बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर वो नहीं हो पाता है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ you have to be mentally tough. You have to prepare yourself that as compared to a regular aspirant, आपको टाइम और एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। आपकी डेडिकेशन हैज़ टू बी लाइक एबनॉर्मली हाई। तो आई पर्सनली नो सीनियर, उन मैम ने जॉब के साथ-साथ किया था और उनका शेड्यूल सुन के मैं हैरान भी रह गई थी एंड आई वाज़ लाइक हैट्स ऑफ टू यू मैम। तो वो जैसे 5 बजे अपनी जॉब से वापस आने के बाद रात को 7 बजे पढ़ाई करना शुरू करते थे, रात के 2 बजे तक पढ़ाई करते थे। सो दैट वाज़ हर शेड्यूल। एंड बीच में जब लंच टाइम मिला तो उस टाइम में फटाफट फ़ोन पे करंट अफेयर्स देख लिए या एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर लिए। सुबह उठने के बाद जब ट्रैवल करते हुए ऑफ़िस तक जा रहे हैं, मेट्रो में वो टाइम यूटिलाइज़ कर लिया। तो इस तरीके के कुछ-कुछ हैक्स आपको अपनाने पड़ेंगे इफ यू मस्ट हैव टू डू योर जॉब अलोंग विद द प्रिपरेशन। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वाइट ऑफन मैरिड वुमेन आस्क, स्पेशली mothers also, how to do along with a baby, along with मैरिड लाइफ। तो अगेन जैसा मैंने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बोला कि पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, टफ काफ़ी है और बच्चे के साथ-साथ बहुत दिक्कत हो जाती है बिकॉज़ वी मदर्स नो कि हाउ मच अटैच्ड वी आर टू द किड्स। और मतलब मन में वो गिल्ट भी रहता है कि वी आर नॉट गिविंग एज़ मच टाइम टू आवर चाइल्ड एज़ मच इज़ नीडेड। तो इमोशनली भी डिफ़िकल्ट हो जाता है और मेंटली भी बहुत ड्रेनिंग हो जाता है। तो अगर आप सीरियसली सीरियसली बहुत जेन्युइनली आप चाहते हैं कि आपको करना है, देन कम इनटू द रिगर्स ऑफ प्रिपरेशन एंड देन डोंट शाई अवे फ्रॉम सीकिंग हेल्प एज़ मच एज़ पॉसिबल फ्रॉम ऑल पॉसिबल कॉर्नर्स। तो चाहे आपके इन-लॉज़ हों, आपके हस्बैंड हों, कोई फ्रेंड हो, आपकी खुद की मदर, पेरेंट, भाई-बहन हो, डोंट शाय अवे। कुछ पैसा खर्च करना पड़े एंड योर फाइनेंशियल कंडीशन अलाउज़, तो हैव अ 24 आवर और व्हाटएवर फुल डे नैनी टू लुक आफ्टर द चाइल्ड एंड यूटिलाइज़ योर टाइम रियली वेल। और इमोशनली आपको बहुत टफ होना पड़ेगा बिकॉज़ आप वास्तव में बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाएँगी, जितना एज़ अ मदर यू वुड लाइक टू। ओके, बट हाउ आई यूज्ड टू थिंक वाज़ कि यू नो एक बार हो जाए सिलेक्शन, तो वो अच्छा टाइम भी आएगा व्हेन आई वुड बी एबल टू स्पेंड टाइम विद माय चाइल्ड। एंड ट्रस्ट मी टुडे विद ऑल द सैटिस्फैक्शन आई कैन से, वो टाइम जब याद आता है तो बहुत बार अभी भी रोना आ जाता है कि जब मैं बच्चे से अलग रह रही थी और प्रिपरेशन कर रही थी। बट टुडे विद यू नो a lot of joy, I can say it was all worth it. Okay, my child understands it and I am happy कि उस समय मैंने उतना एफर्ट लगाया।
So if you can do that. नेक्स्ट और जो बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि जो हाउ टू फाइट योर फियर्स एंड हाउ टू टैकल द नेगेटिविटी अराउंड यू, बी इट इन टर्म्स ऑफ द सोशल सर्कल विच इज़ काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग यू कि नहीं हो पाएगा आपसे, तो हाउ टू डू दैट. सो रिगार्डिंग दैट व्हाट आई हैव टू से इज़, ये आंसर मैं अच्छे से डील करूँगी बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेज माई सेल्फ एंड आई फील कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन है. सो द फर्स्ट थिंग इज टू एक्नॉलेज योर फीलिंग्स. टू गेट डीमोटिवेटेड, to be fearful during the course of preparation is very natural, very normal. कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे तो कभी डर ही नहीं लगा और मैं 100% श्योर था कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो एक्सेप्ट योर फीलिंग्स कि दिस फियर is natural. Second thing, have a backup plan. If you have a backup plan, now trust me, बहुत सारा हेडेक हमारा दिमाग का खत्म हो जाता है. हैव अ बैकअप प्लान टू द एक्सटेंट पॉसिबल. अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, छोड़ के आए हैं, तो इफ यू कैन कंसीडर द पॉसिबिलिटी कि यू कैन गो बैक देयर इन केस थिंग्स डोंट वर्क आउट, इट वुड बी रियली गुड. What else you can try is you can try writing similar exams which are relatively less difficult. SSC CGL का एग्जाम है, क्लर्क का, पीओ का, रेलवेज का, जो भी एग्जाम अगर आप एक लिख के जॉब इंश्योर कर सकते हैं, तो दिमाग की एक बहुत बड़ी हेडेक चली जाती है. ठीक है, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड लेस फियरफुल इन योर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन. नेक्स्ट थिंग इज कि खुद से मोटिवेशन कैसे डिराइव करें और औरों से मोटिवेशन कैसे डिराइव करें. देखिए, व्हेन यू आर फीलिंग लो ना, व्हिच इज एज आई सेड वेरी नेचुरल, तो ट्राई टू फॉल बैक ऑन योर पास्ट अचीवमेंट्स. Think about the times when you actually surprised yourself, when you amazed yourself, when you achieved something, you got some prize, yeah, you did something which you are still proud of. Think about those moments. They will give you the motivation कि तुमने पास्ट में अगर कभी कुछ अचीव करके दिखाया है, तो अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेड रहो तो यू कैन डू दैट अगेन. ठीक है, बाकी व्हेन आई सेड दूसरों से मोटिवेशन कैसे डिराइव करें, तो व्हाट हैपेंस इज जब आप बहुत लो फील कर रहे हो, ठीक है, ट्राई टू थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर डूइंग द प्रिपरेशन, या डूइंग नॉट जस्ट प्रिपरेशन बट हु आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ्स in circumstances which are more difficult, which are worse off as compared to you. Try to think of these people कि लोग कैसे परेशानियों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं. आप सबने शायद ये वीडियो देखी होगी, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है. वो 19 साल का एक लड़का है जो कहीं मैकडी वगैरह में काम करता है और वापस आते टाइम ही हैज एस्पिरेशंस ऑफ गोइंग इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, और अपने फिजिकल की तैयारी का उसे समय नहीं मिल पाता है. इस वजह से व्हाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम द वर्क ही इज रनिंग ऑल द वे टू हिज होम एट नाइट, 12 o'clock at night. अब ऐसी डेडिकेशन कहाँ मिलेगी? थिंक अबाउट सच पीपल कि सच पीपल आर नॉट गोइंग इनटू द मोड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस कि आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव द फैसिलिटीज और द सर्कमस्टांसेस. अगर ऐसे लोग कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट अस who have maybe who are much better placed as compared to these people. तो इस तरीके से you can derive motivation from people around you. Next thing is you will feel motivated if you continue to excel yourself. ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनी अदर रैंडम पर्सन, व्हाट यू शुड सी इज मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है. जब मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट दिया था, तो सपोज मेरे 60 नंबर आए थे, आई गॉट 60 मार्क्स. जब मैं नेक्स्ट दे रही हूँ या उससे नेक्स्ट दे रही हूँ, इज माई नॉलेज बेस इम्प्रूविंग, आर माई मार्क्स इम्प्रूविंग, इज माई स्ट्रैटेजी इम्प्रूविंग? इफ नॉट इम्प्रूविंग, देन वर्क टूवर्ड्स इट. ठीक है, this way, by continuously assessing yourself, you can continue to stay motivated. Next thing is, to the extent possible, surround yourself with people who are your genuine well wishers. और मैं बहुत बार कहती हूँ, आपके शायद पेरेंट्स से ज़्यादा जेन्युइन वेल विशर आपका कोई नहीं हो सकता. व्हेन यू फील लो, तो ट्राई टू टॉक टू दीज पीपल. आपका भाई बहन, योर पेरेंट्स, योर सम गुड फ्रेंड, दोज हु कैन रिमाइंड यू कि यू आर अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, यू आर वेरी डेडिकेटेड एंड यू कैन डू इट. तो having
a circle of such well wishers is very important. For me, it was my brother and rather the whole family. मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, थैंकफुल टू, वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास इतने पॉजिटिव लोग थे। वो उनका एक एक सेंटेंस दिन बना देता था। तो मैं अपना जिस दिन मेंस एग्जाम देके खत्म हो गया था एंड आई वाज कमिंग बैक, तो मेरा भाई मुझे कॉल करके पूछ रहा है कि कैसा गया। मैंने कहा कि फलाने फलाने उसमें मेरा क्वेश्चन छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। आफ्टर दैट आई डिडंट कंप्लेन मच, सिर्फ इतना बोल के आई वेंट साइलेंट। मेरा भाई बोल रहा है, ओ तो फिर ठीक है, इंडिया की टॉपरा में तू आने लग रही है, विच बेसिकली मेंट कि ओके यू आर गोइंग टू बी वन अमंग इंडियाज टॉपर्स। तो मेरी हंसी निकल गई थी। आई डिड नॉट एक्चुअली बिलीव इट एट दैट टाइम, बट मन को खुशी होती है कि देयर आर पीपल अराउंड यू हु बिलीव सो मच इन योरसेल्फ। So surround yourself with positive people who you can fall back on if things are going wrong, if you are feeling low and demotivated. And one another important thing, have some ideal in your life, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसकी डेडिकेशन, हार्ड वर्क या जिसकी पर्सनालिटी से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं। फॉर मी इट वाज स्वामी विवेकानंद। ऐसे लोगों को अपने सामने रखिए, उनके थॉट्स को सामने रखिए। हमें पता नहीं चलता है व्हेन दीज़ स्मॉल स्मॉल थॉट्स दे गिव अस सो मच ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। One thought which is always close to my heart is that every human being has to go through either of the two pains, either the pain of discipline or the pain of regret. And the difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons. It is a powerful thought. So whenever your mind would be telling you to kind of waste time या फिर go for entertainment या go for something else other than studies, when this thought flashes used to flash before my mind, so I used to think no, I don't want to have a life of regret. I am going to give my best and I'm not going to allow myself to be carried away by any negative thoughts. तो अपने अराउंड पॉजिटिव थॉट्स रखिए। एंड लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे, हर कोई यूपीएससी के लिए नहीं बना होता है ना? आपके टैलेंट्स, स्किल्स वो किसी और चीज़ के लिए हो सकते हैं। यू कुड बी अ वेरी गुड पेंटर और यू कुड बी समबडी हु कुड रियली एक्सेल एट एनी अदर फील्ड। सो फॉर एनी रीज़न, बी लैक ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड या फिर हम कह लें दुर्भाग्य ड्यू टू लैक ऑफ गुड लक एट आवर एंड, किसी भी कारणवश अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो प्लीज़ मैं दिल से बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने मन में ये बार-बार थॉट लाती रहती थी, अर्ज़ी मेरी मर्ज़ी तेरी, मेहनत मेरी रहमत तेरी। इट वाज़ काइंड ऑफ प्रेयर टू गॉड कि भगवान मेरी तो ये विश है, अल्टीमेटली चलेगी तुम्हारी विश और मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी, मेहनत मेरी रहमत तेरी। आगे तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी कृपा हो गई, सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया है, वरना बैकअप प्लान था एसएससी सीजीएल जॉइन कर लेंगे। तो बच्चे, लास्ट थिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 5-5 या 6-6 अटेम्प्ट के बाद निकाल के गए हैं और ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी ज़िंदगी के सबसे प्राइम ईयर्स इस प्रिपरेशन में लगाने के बाद निकल गए हैं, पर तब तक भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सो होप फॉर द बेस्ट, गिव योर बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। ठीक है? बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, बी मेंटली टफ, उसकी ज़रूरत है। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान तो डेफ़िनिटली इसकी बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं सोशल मीडिया पे एंड अदरवाइज़ कि इतनी मेहनत की, दिस एंड दैट, अल्टीमेटली टेल अस वाज़ इट वर्थ इट? मैं अपने एक्सपीरियंस से डेफ़िनिटली बता सकती हूँ कि एवरी सिंगल डे I feel thankful, I feel grateful to God, to my family who supported me and made this happen. मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। द प्रोफेशन दैट आई एम इन, इट गिव्स एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ टू फील फील गुड अबाउट योरसेल्फ बाय सर्विंग द सोसाइटी। तो जो हम प्रिलिमिनरी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो हम अपने दिमाग में आंसर्स बनाते हैं ना कि YIS, तो हम बोलेंगे कि वी वांट टू सर्व द सोसाइटी। ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रूथ टू इट if you stay true to yourself and to the ideals that actually drove you to prepare for this exam. You get n number of opportunities, and the amount of satisfaction that you draw from that by doing your job well and by making an impact in people's lives, that is unparalleled. तो बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ and I definitely feel that all the effort, all the pain was definitely worth it. Do you have work life balance? बच्चे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट आई विल टेल यू, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, कार्डर टू कार्डर डिफर करता है, विद इन अ कार्डर ऑल्सो।
डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिफर करता है एंड पोस्ट टू पोस्ट डिफर करता है। कुछ पोस्ट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगी, कुछ पोस्ट रेगुलर होंगी जहाँ पे आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आई फील कि इट इज़ अप टू यू। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने अपने नियर एंड डियर वंस के लिए टाइम निकालना है, तो ट्रस्ट मी, अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं तो यू विल फाइंड वेज टू फाइंड टाइम फॉर दैट। इफ यू आस्क मी, यस आई हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस। मैं अपने परिवार के लिए समय निकाल पाती हूँ। साल में 1 या 2 बार छुट्टी लेके मैं अपने घर हरियाणा भी ज़रूर होके आती हूँ। तो मेरी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस है और मैं ये नहीं मानूँगी आज के दिन कि मैंने ऐसी जॉब जॉइन कर ली है जो मतलब दिन-रात मैं सिर्फ़ उसी में लगी हूँ और मुझे अपने या परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं है। ऐसा नहीं है, आई हैव वर्क लाइफ बैलेंस एंड इफ यू एस्पायर, इफ यू रियली ट्राई फॉर दैट, you too also can have. It is a demanding job, no doubt. But yes, if you are dedicated, you can definitely take out time for yourself and family. Uh, uh, Now the last thing from my side, before after that I'll start taking the questions. Uh, you know, Instagram pay, I have created my account very recently. That I created because a lot of fake accounts were getting created, and I got many complaints that these people who had created the fake account, they were demanding money from others. So, request to all of you, I am never going to, come to you all asking for money for myself or ऐसा ऐसा करके किसी बहाने से प्लीज डोंट फॉल प्रे टू दैट एंड डोंट रिस्पॉन्ड टू सच फेक अकाउंट्स। मेरा फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी माय अकाउंट इज बाय द नेम अनु भोकर। ओके, इंस्टाग्राम पे बाकी है अनु कुमारी IAS, सेम अकाउंट, अनु भोकर प्रॉपर नेम एंड अनु कुमारी IAS, दैट जो भी कहते हैं उसे अकाउंट नेम और वट एवर। तो बहुत सारे मल्टीपल फेक अकाउंट्स हैं, बिवेयर ऑफ दैट, प्लीज डोंट गिव योर मनी और प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड टू अननेसेसरी रिक्वेस्ट फ्रॉम दीज अकाउंट्स। After that, I will be going to the comments. I can see a lot of comments. It is going to take a little bit of time before I go through that. One question is, how can I be consistent with my studies? I feel I have answered this when I talked about that motivation wala question. You think all those things, why you started preparation in the first instance. बार बार अपने aim को visualize करो. Visualize that you are sitting in the chair of a sub collector. You are sitting in the chair of a collector. And what is it going to take to materialize that dream? When you start thinking in that manner, then trust me, you will immediately come back to your studies instead of getting distracted. How can we prepare for UPSC from 12th standard? Already answered that. Again, I would emphasize, but you don't go too much gung ho about UPSC in 12th standard itself. Balki focus on developing a wholesome personality. How can we take accurate and proper decision to make strategy? I think quite a relevant question, because जब हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे ना, तो बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ। तो तरीका यही है, बहुत सारे लोगों की आप स्ट्रैटेजी पहले स्किम थ्रू कीजिए, देन यू डिवाइस समथिंग फॉर योर सेल्फ, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, ये देखने के लिए कीप ऑन कंटिन्यूसली असेसिंग योर सेल्फ। ऑफन पीपल आस्क द क्वेश्चन, करंट अफेयर्स कितने टाइम के करने हैं? I would say at least 1 year prior to the preliminary exam is non-negotiable, करना ही करना है। उससे पहले का अगर आपको टाइम मिल जाए तो कर लीजिए, अदरवाइज आई वुड से स्टिक टू लास्ट 1 year एंड उनको बहुत बार रिवाइज कर लीजिए। Somebody is saying, I don't have access to newspaper. Should I follow your current affairs strategy? I feel you definitely can do that. Online websites पे सारी information होती है जो वो newspaper से ही निकाल निकाल के बनाते हैं. So you can rely on that. PT और मेंस दोनों की तैयारी किस तरीके से करें जो अभी से स्मार्ट तैयारी हो जाए. तो मैंने आई हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन दिस क्वेश्चन, फिर भी मैं दोबारा बता रही हूँ. प्री की और मेंस की अलग अलग नहीं करनी है. देखिए, जीएस की जो किताबें करनी है सारी, वो दोनों में ही हेल्प करेंगी. सिमिलरली करंट अफेयर्स दोनों ही चीज़ों में हेल्प करेंगे. जो मेंस के लिए डेडिकेटेड वाला पार्ट है वो है आंसर राइटिंग, जो मैंने बता ही दिया है. वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग, और तसल्ली से तब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप ये कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि अब मैं 8 या 9 मिनट में एक डिसेंट आंसर लिखने के लायक हो गया हूँ. इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट प्रिपरेशन एट द एज ऑफ 27 ईयर्स? डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. मैंने लगभग 30 के करीब किया था. ठीक है, आप 27 में आराम से कर सकते हैं. आपको बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा क्योंकि अपर एज लिमिट 32 है. I'm starting UPSC preparation at the age of 25, and after my graduation, I have a 4 years gap. Okay, and I stress due to 4 years gap and my age, because during preparation time is also time consuming.
देखिए, इफ़ यू आर रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स यूपीएससी तो यू कैन डेफिनिटली गो फॉर इट। 4 साल का गैप भी है, अगर आप उसे लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट ब्लफिंग बिफोर द पैनल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और इन चीज़ों के आंसर ना धीरे-धीरे आ जाते हैं। शुरुआत में हमें बहुत मुश्किल लगता है कि मुझे मुश्किल लगता था कि हाउ एम आई गोइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाई डिड आई लीव माय जॉब एट द एज ऑफ 30, व्हाई डू आई वांट टू सिट फॉर यूपीएससी, कि मेरे पास सॉलिड आंसर है या नहीं है। बट दीज आंसर्स विल कम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। पहले आप अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए इफ यू रियली आर इनटू यूपीएससी। Somebody is asking कि I have been reading Indian Express for the last 7 months, but still I'm not able to figure out which is relevant and which is non-relevant news. That is why I say कि why don't go by the professionals advice, जो ये websites current affairs वगैरह का डेली का कैप्सूल निकालते रहते हैं। I studied through that, तो उसमें मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था कि कौन सी न्यूज़ मेरे लिए रेलेवेंट है, which one to study and which one to not. Somebody is asking question regarding the reports. Reports like United Nations Environment Program, UNEP, Ministry of Earth Science, WHO की reports अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू करें। दीज रिपोर्ट्स एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट। हमारी कितनी रैंकिंग चल रही है इंडिया की इन वेरियस इंडेक्सेस, इन एज पर वेरियस रिपोर्ट्स, जितना जल्दी कर लेंगे बेहतर रहेगा। बाकी जब आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तब तो एनीवेज कवर हो ही जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। Can I give UPSC after I complete my masters? Sure, you can. Okay. You have to be ready with the answers like you already have done masters. Then after doing the masters also, why do you still want to come for UPSC? पर ये सब आंसर तैयार हो जाते हैं। If you are genuinely interested, तो yes, you definitely should give it a go. One question is covering the current affairs through the videos. बच्चे इसमें I have a kind of you know a strong idea or feeling, whatever you say. I believe that daily covering the current affairs through videos is not a wise choice, क्योंकि जब आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक, या you don't have really views about a certain topic, then you can watch the video, you can try to understand that. But daily doing this video watching for covering your current affairs is not a wise strategy, because when it comes to revision, you will not be able to revise from these videos. So try to cover the current affairs from a source which you will be able to revise. For that, I always say ki some website, Insights on India or any other website which gives a proper compilation of the current affairs. A mom to a 4-year-old boy away from home in a hostel. At times, I get stressed up leaving my child, want to go home, but afraid I will be aloof. I can totally relate to you, and my best wishes and blessings to you. अगर आप इतना बलिदान करके सेक्रीफाइस करके तैयारी कर रहे हैं, my best wishes to you. If you have already started it, so be mentally tough for some more time. Don't give up right away. Okay. Um, God will give you the strength to bear this part, and someday you'll be very happy that you went through all this and came out then with flying colors. ठीक है। मोटिवेशन के लिए जो मैंने सारी चीज़ें बताई थी, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। ट्राई टू गो थ्रू दोज थिंग्स, एंड if you have left your child in the care of somebody who you feel will be looking after the child well, then trust me, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़ रखा था, एंड आई कैन टेल यू कि मुझे अपने से ज़्यादा भरोसा उन पे था कि मैं इतने प्यार से या देखभाल नहीं कर सकती बच्चे की जितनी मेरी माँ कर सकती हैं। सो दैट वाज़ अ वेरी बिग रिलीफ। अगर आपके साथ भी भगवान करे ऐसा ही हो, तो कि जिसके पास भी छोड़ा हो दैट पर्सन इज़ टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड रियली वेल, तो अपना दिमाग थोड़ा-सा शांत करके आप पढ़ाई पे लगाइए। Okay, one question is when I missed my first pre by 2 marks, how many months of preparation was that? As I always say, it was 2 months of preparation. पर उस टाइम पे मैंने करंट अफेयर्स बहुत ही सुपरफिशियल से तरीके से किया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था पॉलिटी वगैरह का या पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह का, तो मैंने सिर्फ जीएस की बुक्स पढ़ी थी उस समय पे बहुत अच्छे से, और वो भी सिर्फ स्टैंडर्ड वाली किताबें, और करंट अफेयर्स की वो 12 महीने की बुकलेट्स डाउनलोड करके बस बहुत ही कर्सरी सी नज़र मारी थी। काफ़ी चीज़ें तो समझ भी नहीं आती थी। तो उस समय मेरा 1 मार्क से रहा था, एंड वो सिर्फ़ 2 महीने की प्रिपरेशन थी, लेकिन जीएस जितना मैंने किया था वो मैंने बहुत डेडिकेशन से और बहुत अच्छे से किया था।
आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बट फिर भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हेल्प। सो फॉर दैट यू हैव टू गेट द मोटिवेशन फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। अगर आपका इरादा बहुत डेडिकेशन वाला है, आपको यूपीएससी ही करना है, तो ट्रस्ट मी, जैसे हमारे एक्स प्रेसिडेंट कह के गए थे, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। तो अगर आपका वास्तविकता में इरादा बहुत स्ट्रांग है, दृढ़ निश्चय है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपका मन यही करेगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट बैक टू स्टडीज। तो बच्चे, हमारी लाइफ में ना हमेशा प्रिपरेशन के टाइम पे भी एंड अदरवाइज वी विल ऑलवेज बी फेस्ड विद टू चॉइसेस, either to go for the right path or to go for the easy path। ठीक है? At this point of time, if you choose the right path ना, then there's nothing stopping you from realizing the success। तो जब एक ऑप्शन हो कि भाई राइट पाथ है पढ़ना, किताब लेके तैयारी करना, और इजी पाथ है थोड़ा सा मोबाइल उठा के सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करते रहो और अपना टाइम बर्बाद करते रहो। डोंट फॉल प्रे टू द इजी पाथ, मेक द राइट चॉइस, दैट विल हेल्प यू अल्टीमेटली। I think now I'm coming to the end of the section. I'm seeing a lot of comments, but you can ask me on my Instagram page by the name Anu Bhokar। वहाँ पे मैं आपकी कुछ कुछ queries को I will try to address। तो अभी I will bid you all goodbye। My best and heartfelt wishes to you। आशा करती हूँ कि आज जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक दिन you also will be having a day in your life when you will be telling your strategy to the aspirants, you will be telling others how you mastered all the, how you overcame all your pain, how you stayed disciplined, and how you cracked the exam. So with that, best wishes, all the best to everyone. Thank you for watching.